Hello everyone and welcome to Innovative Science Tutorials. So students, today we are going to study about the various types of animal tissues. So let us see that what are the contents that we will cover today. Children, first of all, we'll focus at an introduction to animal tissues. Here we will have a general idea of what the animal tissues are, okay? And next is types of animal tissues. That is 4 types of animal tissues: epithelial tissues, connective tissues, muscular tissue and nervous tissue. Children, for today we will just have an overview of connective tissue, muscular tissue and nervous tissue, and we will study only epithelial tissue in detail, okay? Rest of the 3 types of tissues, they will be completed in the next class. So let us start, children. Children, first of all, what is animal tissue? Beta, animal tissue are the tissues that are present in the body of an animal. ठीक है? और tissues क्या है? Tissues are group of similar cells that perform a similar function. So we can say that animal tissues are the group of similar cells that perform similar function in an animal's body. Okay. Now how many types of animal tissues are there? Children, there are 4 types of animal tissue. First is epithelial tissue, which is also known as the covering tissue, as it forms the covering of the various parts of the body. Okay. Next is connective tissue. Connective tissue is also known as supportive tissue. Why so? Because it provides support to the different parts of the body. Third is muscular tissue, children. Again, muscular tissue, since it is contractile in nature, so we can also call it as contractile tissue, because it can contract and relax in order to bring about the movement of body parts such as hands or legs with the joint action of bones. ठीक है? Third, last one, children, last is nervous tissue, that is also known as the message conveying tissue. ऐसा क्यों? क्योंकि nervous tissue जो है बेटा, ये nerve cells के बने होते हैं और इन nerve cells का क्या काम है? To send messages from one point or part of the body to the other part of the body. ठीक है? So today we are going to study the detail only of the first one, that is the epithelial tissue. Let us start, children. So on your screen you can see there is a diagram which there are diagrams, okay? So these are the various types of epithelial tissue that we will study now. But first of all, let us understand that what is epithelial tissue. Children, epithelial tissue is a thin, protective and continuous sheet of cells, okay? And basically it forms the outermost layer or the lining of the internal organs और बॉडी कैविटीज. ठीक है? मतलब क्या? एपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो कि कहाँ पाया जाता है बेटा? ये पाया जाता है बॉडी के आउटर मोस्ट लेयर में, मतलब कि स्किन में पाया जाता है किसी भी एनिमल के, या फिर ये पाया जाएगा बॉडी कैविटीज के लाइनिंग में, मतलब बॉडी में जहाँ जहाँ खाली जगह है. जैसे कि मान लीजिए हमारा जो बॉडी है उसमें बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स है, हार्ट है, लंग्स है, लिवर है, किडनी है, स्टमक है. इसके अलावा भी बेटा अगर सपोज दिस इज अ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, इसमें बहुत सारा स्पेस जो होता है वो हॉलो होता है. जैसे कि मान लो अगर ये सपोज दिस इज अ ट्रैकिया, ठीक है, मतलब कि विंड पाइप, तो और ये विंड पाइप डिवाइड होता है रेस्पेक्टिव ब्रोंकस में दोनों साइड में, और लेफ्ट एंड राइट. आई एम जस्ट ड्राइंग अ रफ डायग्राम चिल्ड्रन टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड. लेफ्ट और राइट लंग में ये एंटर होता है. ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है बेटा कि इनके बीच में भी कुछ स्पेस होता है. यहाँ पे कौन सा ऑर्गन लोकेटेड होता है? हार्ट, जस्ट बीच में. ठीक है? तो इस जगह भी कुछ स्पेस है, कुछ खाली जगह है, यहाँ पे भी कुछ खाली जगह है. रिब केज के अंदर, ये पूरा रिब केज के अंदर होता है बेटा ये सारा स्ट्रक्चर. मैं जस्ट आपको रफ बना के अभी दिखा रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग पेन टैब राइट नाउ. ठीक है? तो ये क्या है? ये एम्प्टी स्पेस ही कहलाता है बॉडी कैविटी. ठीक है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड. तो इस बॉडी कैविटी का जो वाल है उसका भी लाइनिंग कौन बनाता है? उसका लाइनिंग भी बनाता है एपिथेलियल
टिश्यू, मतलब स्किन भी बनाता है, स्किन का आउटर लेयर भी बनाता है एपिथेलियल टिश्यू, इंटरनल ऑर्गन्स का वाल भी बनाता है एपिथेलियल टिश्यू, प्लस एपिथेलियल टिश्यू जो है बॉडी कैविटीज के वाल को भी लाइन अप करता है। आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड। अब ये जो एपिथेलियल सेल्स टिश्यूज होते हैं बेटा, इनके सेल्स दे आर ऑफ 4 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। किस बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं? इनके शेप के बेसिस पे। जैसे कि एपिथेलियल सेल्स कुछ होंगे जो कि फ्लैट होंगे, ठीक है, कुछ क्यूबॉइडल होंगे, कुछ कॉलमनर होंगे, कुछ पॉलीगोनल होंगे। तो इस बेसिस पे हम लोग इनको फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं, दैट इज द काइंड्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स बेटा? इनटू 4 ग्रुप्स और 4 टाइप्स। सो फर्स्ट इज स्क्वैमस, दिस वन स्क्वैमस मींस इट इज composed of flat cells, ठीक है। Then next is cuboidal, it is composed of cuboid shaped or cube shaped cells, ठीक है। और third one is columnar. Columnar epithelial tissue is composed of cells which are elongated, which are vertical in the shape of a column and vertically arranged, and you can see that in all the diagrams, in this one and finally this one, हम ये तीनों का बात कर रहे हैं। The cells are tightly packed, there are no intercellular spaces visible, ठीक है। And apart from that, अगर एक और ये मतलब जनरल फीचर बोले तो वो क्या होगा बेटा? They all have a prominent nucleus। देखो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स में भी है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स में भी है, कॉलमनर में भी है, सिलिएटेड में भी है, सब में एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। 4th वाला टाइप है बेटा सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, ये वाला डायग्राम। अगर आप इस पोर्शन को देखोगे तो इस पोर्शन के कारण ही क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। अदरवाइज ये बिल्कुल किसकी तरह है? ये बिल्कुल कॉलमनर एपिथेलियम की तरह है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो सेल्स होंगे वो वर्टिकली अरेंज्ड होंगे, कॉलमनर शेप्ड होंगे, उनके पास एक न्यूक्लियस होगा, लेकिन न्यूक्लियस का जो साइज होगा वो कंपैरेटिवली काफी छोटा होगा बाकी टाइप से, ठीक है। आप स्क्वैमस का देखो, क्यूबॉइडल का देखो, कॉलमनर का देख लो, किसी का भी देख लो, उन सबसे छोटा जो न्यूक्लियस पाया जाएगा वो पाया जाएगा सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स में। अब यहाँ पे खास क्या है? यहाँ पे खास है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। दीज आर कॉल्ड व्हाट बेटा? दीज आर कॉल्ड सीलिया। इनको हम लोग बोलते हैं सीलिया। सीलिया आर हेयर लाइक और थ्रेड लाइक फाइन स्ट्रक्चर्स दैट कीप ऑन वाइब्रेटिंग, ठीक है। लैशिंग मूवमेंट शो करते हैं, दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग। और इनका क्या फंक्शन है ये हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। वन बाय वन वी विल स्टडी द डिटेल ऑफ ईच। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट वन, दैट इज योर स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो बेटा दिस इज द डायग्राम ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। यू ऑल कैन सी दैट द सेल्स which make up the squamous epithelium, they are thin, you can see they are not very thick, they are thin. Then the cells are flattened and they have multiple sides, means what? The shape of the cells are polygonal। शेप कैसा है सेल्स का? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स का शेप कैसा है? बिल्कुल पॉलीगोनल है। आप किसी को भी एक एग्जांपल ले लो, चलो ये वाला सेल का एग्जांपल ले लेते हैं। 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, सो इट्स अ पॉलीगोनल शेप, ठीक है, या पॉलीगोनल सेल। अब बेटा बिकॉज द एपिथेलियल टिश्यू इज फाउंड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द स्किन, स्किन का भी 2 लेयर होता है, ठीक है। आउटर लेयर जो होता है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, यही वाला होता है वो, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है। और जो इनर लेयर होता है वो कहलाता है डर्मिस। वो क्या है? वो कंपैरेटिवली बहुत थिक होता है, थिकर होता है, वाइडर होता है, किससे? एपिडर्मिस से। ऊपर वाला लेयर जो है वो है एपिडर्मिस। क्यों एपिडर्मिस? क्योंकि वो एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है। किस टाइप के एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है बेटा? ये स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि विच टाइप ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट इन on the outer surface of the skin, then your answer should be squamous epithelium or squamous epithelial tissue, ठीक है। तो ये तो बात हो गया स्ट्रक्चर का। What is the function of squamous epithelium? बेटा since it is present on the outer surface of the skin, so the function is protection,
ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो स्किन है उसका फंक्शन क्या होगा, प्रोटेक्शन होगा। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाई सो, why is it protective in nature? Because beta it is the outermost membrane, outermost covering. It is in direct contact with the environment. Any adverse change in the environment will first affect it. सबसे पहले स्किन का आउटर सरफेस को अफेक्ट करेगा, मतलब स्क्वामस एपिथेलियम को अफेक्ट करेगा। तो इसलिए ये क्या करेगा, ये खुद तो इट विल बी अंडर अटैक बट इट विल प्रोटेक्ट द बॉडी इन टर्न। तो ये हमारा क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। नाउ नेक्स्ट इज चिल्ड्रन क्यूबॉइडल एपिथेलियम और क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। As the name indicates children, cuboidal epithelium tissue is composed of क्यूब लाइक सेल्स। कैसा सेल्स, क्यूब लाइक सेल्स। ठीक है, अब ये सेल्स जो है बिल्कुल टाइटली पैक्ड है और हर एक सेल के पास क्या है, एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। ठीक है, where are they found beta? They are found in the nephrons. Nephrons are also known as the kidney tubules. अब nephrons क्या है, टीचर क्या बोल रही है बेटा, like cell is the structural and functional unit of life, similarly nephrons are the structural and functional unit of what? They are the structural and functional unit of kidney. किडनी का, किडनी जिस सेल्स का बना हुआ है उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को ही हम लोग स्टैंडर्ड 7 लेवल की मैं बात कर रही हूँ, स्टैंडर्ड 7 में हम लोग इस नेफ्रॉन को ही क्या बोल रहे हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं। आगे आप जब हायर क्लास में जाओगे इन स्टैंडर्ड 10 यू विल स्टडी की नेफ्रॉन हैज वेरियस parts such as the Malpighian capsule which is composed of the glomerulus and the Bowman's capsule, then followed by the proximal convoluted tubule, loop of Henle, then distal convoluted tubule and collecting duct। तो जितना भी उसका टिब्यूल वाला पोर्शन है वो हो गया रीनल टिब्यूल। रीनल वर्ड इज एसोसिएटेड विथ किडनी। लेकिन अभी हमारा काम वो जानना नहीं है, हमारा काम ये जानना है कि आखिर नेफ्रॉन में क्यों प्रेजेंट है, क्यों प्रेजेंट है ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्योंकि बेटा ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू के सेल्स होते हैं उनका जो नेचर है एब्जॉर्प्टिव नेचर है, वो एब्जॉर्प्शन करते हैं। ठीक है, तो हमारा किडनी कैसा ऑर्गन है, किडनी प्यूरिफाइज ब्लड, इट इज अ प्यूरिफाइंग ऑर्गन, इट रिमूव्स ऑल द नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ये सबको पता है। तो एट द सेम टाइम द किडनी it also reabsorbs the useful substances। मान लो कोई यूजफुल प्रोटीन है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट ना हो जाए, तो किडनी के जो किडनी टिब्यूल्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, जो नेफ्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इनको वापस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, यूरिन में पास होने नहीं देते हैं। तो ये काम किडनी में कौन करता है, किडनी टिब्यूल्स करता है। किडनी टिब्यूल्स का कौन सा पार्ट करता है, उसका इनर वाल, उसका इनर वाल का लाइनिंग। इनर वाल के लाइनिंग में कैसा सेल्स प्रेजेंट है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ चिल्ड्रन। दिस इज एन है ना, आई एज आई सेड आई एम नॉट यूजिंग पेन टैब राइट नाउ, तो आई एम नॉट राइटिंग दैट प्रॉपर्ली, आई एम sorry for that, but please understand it is NEPHRON। Now next is the last one, sorry third one, that is columnar epithelium. Now columnar epithelium children, I already told you that it is composed of what, vertically arranged tall, somewhat the cells are tall children you can see, and roughly they are cylindrical और कॉलम लाइक। ठीक है, और न्यूक्लियस का भी आप अरेंजमेंट देख लो, एक अगर बॉटम में है तो दूसरा टॉप में, अगेन वन ऑन बॉटम अदर ऑन द टॉप लाइक दिस। ठीक है, इन दिस मैनर द सेल्स एंड द न्यूक्लियस आर अरेंज्ड। ठीक है, अब ये कहाँ पे है, इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है बेटा, कोई भी एपिथेलियल टिश्यू आप पढ़ रहे हो वहां पे स्क्वामस एपिथेलियम में आपको उसका लोकेशन और सेल्स का फीचर एकदम इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली यहाँ पे कॉलमनर में क्या इंपॉर्टेंट है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है और सिक्रीटरी फंक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं उस पर आ रही हूँ, रुको। तो मतलब किसी भी तरह का एपिथेलियल टिश्यू है उसका दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ और द टाइप ऑफ सेल्स दैट इज प्रेजेंट एंड द अदर इज द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय इट। ये दो चीज आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, प्लस एक चीज और है दैट इज द लोकेशन। मतलब टोटल 3 चीज आपको लर्न करना है, टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, शेप ऑफ द सेल्स, एंड देन
फंक्शन एंड फाइनली द लोकेशन, कि आखिर वो प्रेजेंट कहाँ पे है। ये 3 चीज आपको हर किसी में, चारों टाइप में जो है, चारों टाइप जो है एपिथेलियल टिश्यू के, सब में आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये जो कॉलमनर एपिथेलियम है बेटा, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। अब स्टमक और इंटेस्टाइन क्या करता है, अगर आप याद करो तो दीज आर द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। ये दोनों ही डाइजेस्टिव पार्ट्स है और दोनों ही डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, स्टमक प्रोड्यूसेस द गैस्ट्रिक जूस एंड इंटेस्टाइन प्रोड्यूसेस द इंटेस्टिनल जूस एंड बोथ दीज जूसेस इज composed of so many digestive enzymes, ठीक है। तो right now what I want to say कि स्टमक का जो इनर लाइनिंग है या इंटेस्टाइन का जो इनर लाइनिंग है, इसमें जो सेल्स प्रेजेंट है वो है कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, और इन सेल्स का काम क्या है, सिक्रीशन करना। किसका सिक्रीशन करना, अगर स्टमक है तो गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। अगर इंटेस्टाइन का इनर वाल का बात हो रहा है तो इंटेस्टिनल जूस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वे पॉसिबल आई एम एक्सप्लेनिंग यू, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेस्टाइन से इंटेस्टिनल जूस और स्टमक से गैस्ट्रिक जूस, दैट इज योर HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, that is used to kill the germs that enters along with food, ठीक है। उतना ही नहीं, एक एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड करता है स्टमक को, so that the digestion of food is easy inside the stomach, ठीक है। तो this was all about the columnar epithelium. Next is what बेटा, that is the last one, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, पहले ही बता दे रहे हैं, ठीक है। सिलिएटेड एपिथेलियम और सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये सेल्स जो हैं वो बिल्कुल कॉलमनर एपिथेलियम जो अभी हम लोग देखे थे जस्ट अभी, इनकी ही तरह होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। इस वाले डायग्राम में देखिए आप लोग, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज सीलिया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सीलिया दे डू लैशिंग मूवमेंट, वाइब्रेटिंग मूवमेंट, आगे पीछे, और इस वाइब्रेशन से वो किसी भी पार्टिकल को मूव करवा सकते हैं आगे पीछे, ठीक है, अपने मूवमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा, इट इज प्रेजेंट इन द विंड पाइप एंड द ओविडक्ट। थोड़ी देर पहले मैंने रफ डायग्राम बना के शो किया था विंड पाइप क्या होता है, ठीक है। दिस इज द विंड पाइप, सपोज दिस विंड पाइप डिवाइड्स इनटू 2 bronchus, plural is bronchi, which enters the respective lung of each side, that is left and right side, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेन में जो बताना चाह रही हूँ वो ये है कि सपोज दिस इज अ नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से नेजल चैम्बर से फेरिंग्स, और फेरिंग्स से फिर क्या है आपका ये हो जाएगा ट्रैकिया। तो एयर जो है वो नोस्ट्रिल से एंटर किया, इसमें अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो घुस गया विंड पाइप में। ये वाला जो रीजन है बेटा, दिस इज योर विंड पाइप, ठीक है, यही है विंड पाइप। इसके अंदर सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज रहते हैं, ठीक है, जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग। तो अगर मान लो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी डस्ट पार्टिकल अंदर चले गया है तो सीलिया विल वाइब्रेट एंड पुश दिस पार्टिकल आउट थ्रू द नोस्ट्रिल। So this is the function of ciliated epithelium in the trachea, wind pipe. दूसरा है ओविडक्ट। ओविडक्ट इज ऑल्सो नोन एज द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, और इसका क्या नाम है, यूट्रिन ट्यूब। यूट्रिन ट्यूब देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ओविडक्ट। क्यों, बिकॉज ओविडक्ट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओविडक्ट में ही जो स्पर्म होता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द स्पर्म फ्यूजेस विद द ओवम, ओवम इज ऑल्सो नोन एज एग। तो इस वाले पोर्शन में ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यूट्रिन ट्यूब के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, हेयर लाइक सीलिया प्रेजेंट है। देखिए इसी पोर्शन का ये मैग्नीफाइड डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट है। तो सपोज ओवरी के अंदर से, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर से अगर एग रिलीज हुआ है,
उसको आगे पहुंचाने का काम किसका है? उसको आगे पहुंचाने का काम है सीलिया का। सीलिया विल वाइब्रेट, दे विल शो द लैशिंग मूवमेंट एंड इन टर्न दे विल पुश द एग फॉरवर्ड। ठीक है, तो फिर अगर अंदर में कोई स्पर्म प्रेजेंट है, ठीक है, तो ओविडक्ट के अंदर, तो वहां पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा और ये जो एग है ये जाइगोट में बदल जाएगा। फिर जाइगोट क्या है, धीरे 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 यूट्रस में जाके फिक्सअप हो जाएगा फाइनली। तो इस जाइगोट को भी यहाँ से यूट्रस तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि इसमें सीलिया प्रेजेंट है जो कि ये मूवमेंट ऑफ द जाइगोट को पॉसिबल करेगा। तो अभी के लिए आप इतना जानिए कि इट पुशेस द एग ऑल द वे थ्रू द यूट्रिन ट्यूब। ठीक है, और अगर बाय चांस फर्टिलाइजेशन हो गया है, जाइगोट बन गया है, तो जाइगोट को भी आगे वो मूव करवाएगा टिल इट रीचेस द यूट्रस वेयर इट इम्प्लांट्स और फिक्सेस इटसेल्फ फॉर फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनटू एन एम्ब्रायो। तो ये था बेटा सिलिएटेड एपिथेलियम का स्ट्रक्चर और फंक्शन। स्ट्रक्चर तो बिल्कुल कॉलमनर एपिथेलियम की ही तरह है, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इसमें सीलिया प्रेजेंट रहता है और कॉलमनर एपिथेलियम में सीलिया नहीं प्रेजेंट रहता है। So with this children, we come to the end of today's class. We will continue with this topic in the next class and we will study about the three remaining tissues, that is connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. Till then, stay tuned children, and in case of any doubt, please comment in the comment box and let me know so that I can solve your queries. And if you did not subscribe till now, please subscribe my channel. Do like, share my videos if you really find them useful, and do not forget to press the bell icon in order to get all the latest updates of my uploads and live sessions. Thank you children.